So today we are going to study electric dipole. In order to study electric dipole, first requirement is what is dipolarity, how the dipole concept arises, and what becomes its importance for that study. Suppose we take a material. This material is formed by the atoms and molecule, and we know it is electrically neutral. When this material is subjected to external electric field, suppose we apply external electric field E, so the positive charge center of this molecule or material gets shifted in the direction of field, and negative charge center get shifted in the direction opposite to the field. That creates a separation between the positive and negative charge. But already this material is neutral. So this separation, due to separation between positive charge and negative charge, molecule gets stressed and its shape gets deformed like this. So this will the next shape after polarization. So this polarized molecule has equal and opposite charge. Already it is neutral, but this get a inherent property that when this molecule is oriented at some angle that is not in the direction of electric field and not in the direction opposite to the direction of electric field. So suppose we oriented this molecule minus Q and plus Q. So दिस सिस्टम स्टूडेंट अपना माइक ऑफ कर लो, जब क्वेश्चन आस्क करना हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं माइक को ऑन करके। यहाँ पर देखिए, तो दिस मॉलिक्यूल व्हेन वी मेक सम ओरिएंटेशन विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वी मेक सम ओरिएंटेशन थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, this positive charge center experience a force in the field direction and negative charge center experience a force in opposite to the field direction. This is the force experienced by negative charge and this is the force experienced by positive charge. So you assume this body experience a force in the field direction and this in the opposite to the field direction. So this molecule or material body experience a torque and start rotating about its center point. So it means कि when a body is placed in electric field, it starts rotational motion when it experiences a torque. So dipolarity is the phenomena or property. Dipolarity is the property by which a material body starts rotational motion or acquire rotational motion when placed in the electric field. So this dipolarity is developed in the material body due to separation of its charges. That means due to separation between positive charge center and negative charge center. So when this body, positive charge center and negative charge center initially coincide, so this body is neutral, but now the center of positive charge and negative charge is displaced and separated through a distance. Due to separation through a distance, this body form a new system. That system will acquire rotational motion subjected to the orientation in electric field. So in the way we can say that dipolarity phenomena or dipolarity property get established in the material body. So this new system is known as electric dipole. That means what is electric dipole? So this is the origin of concept of electric dipole. Now we write what is the definition for electric dipole. What is electric dipole? So we assume we see here that there is equal and opposite charge separated through a small distance constitute an electric dipole. So the required definition for electric dipole becomes the system of two
equal and opposite charge separated through a small distance is called electric dipole. Suppose we take the AB negative charge और B point पे positive charge plus Q. This is separated through a small distance. This distance we take, suppose this is O, so this distance you assume X or L or D, any symbol you can use. So this is also L. So separation between the two charges becomes 2L. So this system is known as electric dipole. So electric dipole equal and opposite. If here becomes 2q charge, here minus q charge, then this system do not said to be electric dipole. For electric dipole, charge must be equal in magnitude and opposite in polarity. Opposite in polarity or nature. Direction यहाँ नहीं बोलेंगे. Charge is a scalar quantity. It do not have direction. So opposite in polarity but equal in magnitude. अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो जो मेन प्रॉपर्टी, जैसे चार्ज का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश करना, उसी तरह इस सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हम लोग दर्शाएंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन द निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन कराने वाले लाइन को डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द डाइपोल एक्सिस होता है, दैट इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करेंगे P से और इसके डायरेक्शन को डिनोट करेंगे P कैट से। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। So our next topic becomes electric dipole moment. Electric dipole moment. So what is electric dipole moment? So electric dipole moment is defined mathematically, and what is the significance of dipole moment, electric dipole moment? It is also we have to study. What is the physical significance of electric dipole moment? So in electric dipole, magnitude of either charge माइनस क्यू एंड प्लस क्यू में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। किसी एक का मैग्नीट्यूड हो गया क्यू एंड डाइपोल लेंथ हो गया 2L। यह डायरेक्शन जो है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge and dipole length is called electric dipole moment. And electric dipole moment is a vector quantity. Its direction is from negative charge to positive charge along dipole axis. From negative charge to positive charge along dipole axis, the direction of electric dipole moment. Negative charge to positive charge, that is along dipole axis. So dipole moment को P vector can be written as magnitude हो गया Q into 2L and direction हो गया from negative charge to positive charge. यहाँ vector sign दे देंगे. So P can be written as magnitude of P and P cap, where P cap is the unit vector whose direction is from negative charge
टू पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज तो किसी भी सिस्टम के नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं है, यह डाइपोल सिस्टम के लिए नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज फॉर द सिस्टम, विच सिस्टम? इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के लिए। सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बट व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम लोग को जानना है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जो है पुनः आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ओरिजिन पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी डाइपोलरिटी जो आपको समझाया है, डाइपोलरिटी टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग पे। यहाँ पर मान लो कि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पे अप्लाई किया तो यह मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो गया, यानी अब यह एक सिस्टम बन गया जिस सिस्टम का न्यू नेम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और यह अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस सिस्टम को हम लोग जो है कुछ ओरिएंटेशन पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। मान लो इस ओरिएंटेशन पे ले लिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस सिस्टम को यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इधर होगा, ये दोनों के बीच का एंगल है, या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर फोर्स राइट वार्ड है, इस पे फोर्स लेफ्ट वार्ड है, इसलिए यह जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में। और टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा इसका? इनटू द प्लेन, राइट हैंड थंब रूल से इनटू द प्लेन होगा टॉर्क का डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि इस पर लगने वाला टॉर्क का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो हम लोग को आवश्यकता हुआ एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का, जो फिजिकल क्वांटिटी पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट अमाउंट ऑफ टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैलकुलेट कर सके। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इसको निकालना है। दैट मीन्स उसी क्वांटिटी के लिए हम लोग जो है टर्म डिफाइन किए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली हम लोग Q इंटू 2L लिए हैं, P का मैग्नीट्यूड, ये वास्तव में है क्या? यह बतलाता है कि यूनिट स्ट्रेंथ के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना टॉर्क एक्वायर करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, जब इस सिस्टम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तब। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और तब जाकर के हम लोग को प्रॉब्लम इस पे करना है। एक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में आता है, जनरली एकदम इजी है, जो एसआई यूनिट आपका पूछता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एसआई यूनिट ऑफ P, P का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए Q इंटू 2L है, Q का हो गया कूलम, इसलिए C को कैपिटल लिखिएगा, और M का मतलब हो गया मीटर, तो CM कूलम मीटर। अब जो है इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन बताइए, तो डायमेंशन में इक्वल नहीं लिखते हैं, डैश देंगे। अब देखिए कूलम जो होता है, चार्ज जो है I इंटू टी, I फंडामेंटल क्वांटिटी है और T भी फंडामेंटल है, I का एम्पियर, T का T, तो ATL इसको अरेंज करके आप लिखिएगा तो यह हो जाएगा M0 LTA, यह हो गया आपका डायमेंशन। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग को किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट एनी एक्सियल पॉइंट एंड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। सो अब हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग का टॉपिक का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट, इसको एक्सियल करते हैं, एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में इंट्रोडक्शन यूज करते हैं। तो देखिए करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है।
कहां पे निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। तो ये तीन बातें जो है वो मेंशन होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। तो हम लोग इंट्रोडक्शन इस ढंग से बना सकते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका कुछ नेमिंग डाल लीजिए, ए बी ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू हैविंग डाइपोल लेंथ 2a, full stop, let P be any point। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, डाइपोल मोमेंट को भी P से डिनोट करते हैं और जो पॉइंट लिए हैं उस P को भी डिनोट करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से और इस पॉइंट को कैपिटल P से। अदरवाइज आप इस पॉइंट को P के जगह चेंज करके कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ भी मान सकते हैं, कोई भी सिंबल मान सकते हैं। अगर P में कंफ्यूजन होता है तो, अगर नहीं कंफ्यूजन होता है देन यू कैन एज्यूम P। लेट P बी एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस R from center of dipole on axial line where electric field has to be determined, has to be determined। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। अब इसका करस्पॉन्डिंग हम लोग डायग्राम बना देंगे। तो सपोज करो यहाँ पर ए पॉइंट है, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर बी पॉइंट है, प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का यह सेंटर हो गया सी, यह डिस्टेंस जो हो गया एल, और यह भी डिस्टेंस हो गया आपका एल। अब यहाँ से यह लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन बोलेंगे। अब इसके सेंटर सी से एक्सियल लाइन पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लेंगे हम लोग पी। अब इसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। यह हो गया इंट्रोडक्शन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मार्किंग स्कीम इसका बोर्ड का बता देते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में पूछता है आपका डेरिवेशन में 3 मार्क्स में। तो मार्किंग स्कीम इसका हो गया कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, सेकंड इसमें जो है माइनस क्यू निगेटिव चार्ज है और प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है। तो माइनस क्यू का निगेटिव चार्ज का फील्ड, फिर प्लस है पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, फिर उसके बाद दोनों फील्ड को पी पॉइंट पे ही कैलकुलेट करना है। तो पी पॉइंट पे दो फील्ड जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड होंगे। तो एसपीपी यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको यूज करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यूज करेंगे तो ये बाद में रिजल्ट में कैसे पता चलेगा कि ये डाइपोल का फील्ड है या किसी चार्ज सिस्टम का फील्ड है। तो उसके लिए इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को, यानी डाइपोलरिटी कंसेप्ट यूज करनी होगी। और जब एक करेंगे हम लोग तो ये भी बतलाना है कि जनरली क्वेश्चन में आपको 2 लैंग्वेज रहता है कि शॉर्ट डाइपोल के कारण फील्ड निकालिए, या फिर आपको क्वेश्चन रहेगा फाइंड द फील्ड एट फार ऑफ पॉइंट, वो डबल एफ ऑफ। तो फार ऑफ पॉइंट का भी मीनिंग हुआ कि स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में या एल जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी बहुत ही स्मॉल है, उसको फार ऑफ पॉइंट बोलते हैं। उसको बात को हम लोग बोलते हैं, इस टर्म को शॉर्ट डाइपोल कंडीशन, कंडीशन शॉर्ट डाइपोल कंडीशन। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्टेप है। प्रत्येक स्टेप पे हाफ मार्क्स अलॉटेड है, 3 मार्क्स का यह क्वेश्चन आता है। आपको क्या करना है, ये 6 स्टेप को मेमोराइज कर देना है। ये मेमोरी टिप्स है जिससे आपको खुद याद हो जाएगा करना क्या है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू हैविंग डाइपोल लेंथ 2l, लेट P be a point at a distance r from center of dipole where इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी डिटरमाइंड। यहां तक लिख दिए। अब देखिए, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो प्रीवियस क्लास में हम लोग सीखे थे, वहां +1 यूनिट का चार्ज प्लेस करते हैं। तो यहाँ P पर +1 यूनिट का चार्ज प्लेस कीजिए। रेड नहीं दिख रहा है तो ब्लैक से लिख रहा है, +1 यूनिट का चार्ज यहाँ प्लेस कीजिए। अब यह पॉजिटिव है, इसके कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E+ पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, या निगेटिव चार्ज है, इसके कारण इस डायरेक्शन में फील्ड लगेगा तो E-। तो इस P पॉइंट पे 2 फील्ड आया, E- और E+, दोनों का सम हम लोग को निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन। सेकंड स्टेप में निगेटिव का फील्ड निकालिए या पॉजिटिव का, या पॉजिटिव निगेटिव सेकंड थर्ड आप कर सकते हैं इंटरचेंज। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जो है जस्ट सेकंड स्टेप इसका क्या है,
पॉजिटिव चार्ज का फील्ड निकालना। तो लिखेंगे हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करेंगे E प्लस वेक्टर से, और E प्लस का वैल्यू लिख देंगे 1/4πε0। चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाय दूरी कितना हो गया, तो यहां से देखिए सेंटर से R है और सेंटर से CB का दूरी L है, तो यहाँ R माइनस L हो गया इसका होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर है, तो देखिए निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव का जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में है, और यह डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। सो दिस बिकम्स P कैप। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को P कैप से डिनोट करेंगे यूनिट वेक्टर लेकर के। इस पे आपको जो है ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस पे हाफ मार्क्स, या जो है पॉजिटिव का इस पे हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसको E माइनस से डिनोट करना है, तो 1/4πε0। यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं और डायरेक्शन जो है वो वेक्टर कंसेप्ट से लेते हैं, तो Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा AP डिस्टेंस हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका बताइए अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस P कैप लिखेंगे। ये माइनस P कैप का माइनस जो है यहाँ आ गया और ये डायरेक्शन हो गया P कैप। इस पर भी जो है आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अब क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आप समझ गए। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, मेमोरी टिप्स का दोनों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जोड़ देना है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे जोड़ करके, यानी ऐड करके, फ्रॉम एसपीपी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम में एसपीपी नहीं लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एसपीपी से हम लोग को जो फील्ड निकालना है कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड का नेमिंग जो सिंबल डिनोट करेंगे वो EX, या होगा कितना, पॉजिटिव का फील्ड है और निगेटिव का फील्ड है। दोनों को ऐड किस मेथड से करना है, वेक्टोरियली ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करके लिख दीजिए। अब देखिए यह ऐड करके 1/4πε0 Q को कॉमन ले लो यहाँ से, 1/4πε0 Q कॉमन हो गया, बच कितना गया 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस में, और P कैप फिर कॉमन हो जाएगा। ये कॉमन लेकर के हम लिख दे रहे हैं, यह हो गया 1 प्लस वाले का पहला था तो r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर और P कैप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, या 1/4πε0 Q। अब देखिए इसको यहाँ पर ले आएंगे सोल्व करने के लिए, यह हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ माइनस है इसको तोड़ दो, तो a² प्लस b² माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, और माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b² इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया p कैप। अब आप जो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किए हैं, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आपको जो है मार्क्स मिलेगा हाफ मार्क्स, बट कैलकुलेशन पे मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई 12 का कंसेप्ट नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर छठा क्लास में पढ़े होइएगा, छठा का है, या इंटेलिजेंट स्टूडेंट होइएगा तो खुद पढ़े होइएगा याद करके, तो उस फॉर्मूला का यूज किया, इसलिए इस पे कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वेक्टोरियली ऐड करना है, 12 कंसेप्ट है 12 क्लास का, इसलिए इस पे मार्क्स अलॉटेड है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखिए, तो यह r² L² कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट, ताकि आपको दिखाई दे, यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं अपर वाले लाइन को। अब यहाँ से फिर ले रहे हैं, ये बराबर हो गया 1/4πε0 2rl कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू Q है, Q इंटू 2l को एक साथ ले लीजिए, बच गया r डिवाइडेड बाई r² माइनस L² का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया P कैप। अब जो है ऐसा क्यों लिखे हैं, यहाँ तक आपका कोई मार्किंग अलॉटेड नहीं है,
अब यहाँ देखिए Q इंटू 2L जो है यह कौन चीज को बतलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और यह P कैप उसका डायरेक्शन। तो यह क्वांटिटी और यह क्वांटिटी मिलकर के डायरेक्ट क्या बन जाएगा, P वेक्टर। तो जैसे ही इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चेंज करेंगे टू, यह हो गया P वेक्टर R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे लिख सकते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू मॉड P कैप, P हो गया Q इंटू 2L इंटू P कैप। तो ये जो कंसेप्ट आप यूज किए हैं ये आपका 12th का ही स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि P वेक्टर 12 में ही पढ़े हम लोग, इसलिए यहाँ पे मार्क्स अलॉटेड होगा हाफ मार्क्स, यानी इस कंसेप्ट पे। अब जो है कंडीशन यूज करना है, SPP हो गया, P में कन्वर्ट हो गया, यही बता रहा है कि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो है फॉर शॉर्ट डाइपोल, ओके, टाइम कम है जूम मीटिंग का, ये टॉपिक हो जाएगा आपका। अब फॉर शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। शॉर्ट डाइपोल के लिए R स्क्वायर मच ग्रेटर देन L स्क्वायर आप यूज करेंगे, तो R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में L स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि R स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, या 1 माइनस L स्क्वायर बाई R स्क्वायर आता है, L बाई R जो है स्मॉल होता है उसका स्क्वायर करेंगे और ज्यादा स्मॉल होगा, इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर भी शॉर्ट करके हम लोग इसको लिख सकते हैं E एक्सियल, हाँ यहाँ तक विजुअल है, लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो गया 2 P वेक्टर R डिवाइडेड बाई R का पावर 4 हो जाएगा 2 और 2। अब इस R के पावर 4 को इससे हम लोग कटिंग कर देंगे, कैंसिल होकर के यह बच जाएगा RQ। तो फाइनल जो रिजल्ट आपको आया, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P वेक्टर डिवाइडेड बाई RQ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट। यहां पे आपका जो है हाफ मार्क्स अलॉटेड होगा, हाफ मार्क्स यहां पे। इस तरह आप जो है शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन हाफ को 6 टाइम्स हम लोग लिखे हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर से मेमोरी टिप्स रिवाइज कर लीजिए, इंट्रोडक्शन, निगेटिव का फील्ड निकालना, पॉजिटिव का फील्ड निकालना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना, उसके बाद डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट कर देना रिजल्ट को, और शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन यूज करके एल को हटा के आर के टर्म में ले आना। तो इस तरह एक चीज यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, व्हाट रिलेशन इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये किस रिलेशन के लिए करेंगे, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो हम लोग लेते हैं, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दिस इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्ज। एंड सेकेंड जानिए, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी यहाँ फॉर्मूला देखे हैं, R³ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यह हो गया फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन आएगा डाइपोल का फील्ड का, वो क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट? सो 2 पार्टिसिपेंट, okay, it is about to in area. Have you any question to ask? Okay. So have you cleared the memory tips for the axial point, and similarly इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी सेम मेमोरी टिप्स है, उसमें भी हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, पॉजिटिव का फील्ड निकालेंगे, निगेटिव का फील्ड निकालेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके ऐड करेंगे। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो ऐड करेंगे वो 3 ढंग से ऐड होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर 2 है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लीजिए, अगर थीटा का वैल्यू 0 या 180 डिग्री नहीं है।
और 0 या 180 डिग्री है तो बस सेम डायरेक्शन में होगा, एक लाइन में आ रहा है तो जो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं डायरेक्शन पी कैप यूनिट वेक्टर लेकर के ऐड कर लो, या फिर रिजोल्यूशन एनालिटिकल मेथड से ऐड कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उस क्लास में आपको ये ट्रिक बताएंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी हम लोग 3 मेथड से यूज कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट करना, शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन यूज करना, इतना करके हम लोग बता देंगे। अब यहाँ पर इसको केवल आपको ध्यान रखना है कि डाइपोल का जो फील्ड होगा वो क्यूब के डिस्टेंस के जो है क्यूब के डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा कि यह क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या यह कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं। जनरली आपको बताया गया है कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है वैसे फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में। तो यहाँ बताइए ये क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल का जो है यह भी कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि जैसे ही क्यूब का फैक्टर आप देखते हैं फॉर्मूला में देखिए P है और P जो है Q इंटू 12 होता है, तो एक जो लेंथ का डायमेंशन है वह हमारे न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में लेंथ का जो है वह Q है, यानी 3 पावर, एक पावर कैंसिल आउट होगा तो 1/2 यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ इसका भी एक्टिव होगा, वैलिड होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन स्पाइट ऑफ क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लेंगे फील्ड का तो वो क्यूब का ही आएगा, फिर भी यह फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, सो वी मीट इन द टुमारो लाइव क्लासेस विथ द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट, देन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 टॉपिक आपको करना है और इसके साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस इस पे आपको करके लाना है, वो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। और पहला क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी का होगा 1.8 इलेक्ट्रिक फील्ड का था, उसका 1.25 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है और ये डाइपोल सिस्टम पे जो है 1.10 बनाना है आपको और एक 1.28 बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे 1.33 बनाना है। इसके अलावा कल जो आपका डीपीपी अपलोड हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डीपीपी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डीपीपी कल अपलोड हुआ है इसका 60 क्वेश्चन के अबाउट है। एनी स्टूडेंट कितने क्वेश्चन है बताइए जो डीपीपी कल देखे हैं। 62 है, फ्रॉम विच नंबर, 34 से है या 31 से है, 34। तो डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 34 to 62 तक बना करके आना है। सभी स्टूडेंट के लिए आवश्यक है, इसको आप सोल्व करेंगे और फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप पे अपलोड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन स्टूडेंट बनाए हैं कौन स्टूडेंट नहीं बनाए हैं। एक काम यह है, अगर इस काम में आपका ज्यादा टाइम टेकन होता है तो आप घर पे बना लीजिए 34 से 62 क्वेश्चन और इसमें से जो जो क्वेश्चन नंबर आपसे नहीं बना है उसका क्वेश्चन नंबर लिख करके ग्रुप में मैसेज कर दे ऑल स्टूडेंट, मैसेज बाय ऑल स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड। सभी स्टूडेंट मैसेज करेंगे, अदरवाइज टीचर के इंडिविजुअल जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितने आदमी ने देखा है और वीडियो में ही टास्क दिया जाएगा, आपका क्वेश्चन भी वीडियो में ही दिया जाएगा जिसको आपको घर पे बनाना है और बना करके जो है फिर इन्फॉर्म करना है कि कौन कौन नहीं बना। जो जो नहीं बना होगा वो क्वेश्चन कल पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, आपका जो बच गया है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और उसके बाद तब हम लोग आ जाएंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने के बाद तब जाकर के नेक्स्ट क्लास का प्लानिंग आपको बतलाया जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, उस एससीबी के लिए 1 मिनट, एससीबी के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां तक करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। पहले तो ये आप डीपीपी कंप्लीट करेंगे फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेक्चर आपका हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। इस डीपीपी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन भी एडेड है।
तो उसको बना लेना है, जो दिक्कत होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो अभी रनिंग है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कल टॉपिक खत्म होने के बाद इसका टास्क आपको कल देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब खत्म हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म हो जाएगा तब गॉस लॉ, और गॉस लॉ खत्म होने के बाद फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वहां पे आपको बताएंगे थिन रॉड का क्या होगा, आर्क का क्या होगा, सेमी सर्किल का, सर्किल का क्या होगा, उसके बाद हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और उससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर का हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में एडवांस तक का, वो सारे क्वेश्चंस आपको वहां डील होगा। ठीक है, आफ्टर गॉस लॉ के बाद, क्योंकि गॉस लॉ इज आल्सो अल्टरनेटिव लॉ ऑफ कूलम्स लॉ। बोर्ड में एक क्वेश्चन कभी कभी यह भी आता है, कूलम्स लॉ से गॉस लॉ को ऑब्टेन करें। ओके, so time will be, class will be end on the Zoom.